بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کا یہ ویڈیو ہمارا بہت خاص ویڈیو ہے۔ آج ہم جانیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے بھی کہ اس دنیا فانی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کو اکثر لوگ یسوع مسیح کے نام سے بھی جانتے ہیں، امام مہدی اور دجال کا بھی ظہور ہونے والا ہے، اور امام مہدی کے ظہور سے پہلے اس دنیا میں ہر جگہ ظلم کا دور ہوگا، ہر جگہ حق کو دبایا جائے گا، جیسا کہ آج کل دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستو یہ سب غیب کی باتیں ہیں، اور غیب پر ایمان لانے والا ہی مسلمان ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا ظہور کب، کیسے اور کن حالات میں ہوگا، اور وہ اس دنیا فانی میں آ کے کیا کریں گے۔ یاد رہے دوستو، یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے۔ امام مہدی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی، اور ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد زمین سر سبز ہو جائے گی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے زمین بنجر ہو جائے گی، اور دنیا میں فوڈ کی شارٹیج ہوگی، جو کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح کلائمیٹ چینج ہر سال ایگریکلچر کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک فتنہ پھیلے گا، جس میں لوگ ایسے تپائے جائیں گے جیسے بھٹی میں سونا تپایا جاتا ہے۔ پھر لوگ کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے، لیکن وہ یہ جنگ ہار جائیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ایک انسان ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ ان پر اپنی نعمتیں نازل کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت ہوگی تو ایک آدمی مدینہ سے مکہ میں موجود بیت اللہ میں آئے گا۔ پھر مکہ کے لوگ اسے باہر نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام کے لوگ بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، جبکہ وہ اس بیعت کو بالکل پسند نہیں کرے گا۔ پھر قریش سے ایک آدمی نکلے گا، اور وہ ایک لشکر لے کر اہل شام سے امام مہدی کو قتل کرنے آئے گا، لیکن اللہ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ریگستان میں دھنسا دے گا۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو شام سے اللہ کے ولی اور عراق کے بہترین لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کی بیعت کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ مہدی اس وقت نظروں سے چھپ جائے گا اور غریب اور مسافروں میں سے ہوگا، جب اسلام غربت کے عالم میں اس اونٹ کی طرح ہوگا جو تھکاوٹ سے اپنی گردن ڈالے ہوئے ہوتا ہے، تو اس وقت زمین اس کے سامنے اپنے خزانے انڈیل دے گی اور اس کے سامنے اپنی چابیاں ڈال دے گی۔ پھر وہ تمہیں دکھائے گا کہ انصاف کیسے کیا جاتا ہے۔ امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے ایک فوج چلے گی، جو کہ امام مہدی کی فوج کے ساتھ جا ملے گی۔ آج کے دور میں خراسان کے علاقے میں ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان اور پاکستان، ان سارے ملکوں کا کچھ حصہ شامل ہے۔ اس خراسان کے علاقے میں جتنے بھی ملکوں کے شہر آتے ہیں، ان سب میں ایک چیز کامن ہے، یہ سارے شہر کچھ خاص ڈیولپڈ نہیں ہیں۔ خراسان کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور ریتلا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ دنیا کی عیاشی سے الگ ہے، تاکہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہوں وہ کیا جنگیں لڑیں گے۔ اور دوسری کامن چیز اس علاقے میں یہ ہے کہ اس علاقے میں زیادہ تر آبادی پٹھان کی ہے، جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بہادر قوم ہے۔ لیکن اس خراسان کے جس علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلے گی، اس وقت کے حالات کے مطابق وہ افغانستان ہو سکتا ہے، کیونکہ افغانستان میں آج کے وقت اسلامی قانون کے مطابق حکومت قائم ہے، اور افغانستان ہی وہ ملک ہے جس کے پاس آج کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی GDP پہلے ہی نیچے اتنی جا چکی ہے۔ اور تیسری چیز، افغانستان ہی وہ ملک ہے جس میں طالبان نے امریکہ جیسی سپر پاور کو اپنے ملک سے بھگا دیا تھا۔ جب اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو طالبان نے ایران سے فلسطین کے لیے راستہ مانگا تھا۔ آج کے حالات کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ یہ فوجیں افغانستان سے ہی چلیں گی، لیکن جب خراسان سے فوجیں امام مہدی کے لشکر کے ساتھ جا ملیں گی،
फिर मुसलमान पूरी दुनिया को फतह करेंगे और मुसलमानों की पूरी दुनिया पर हुकूमत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोमन्स दाबिक या अलमाक नाम की जगह पर जमा होंगे और मुसलमान भी जंग की तैयारी करेंगे और मदीना से रोमन्स के खिलाफ फौज भेजेंगे। ये दोनों फौजें आपस में जंग करेंगी। रोमन्स मुसलमानों से कहेंगे कि हमारे रास्ते से हट जाओ ताकि वो दूसरे ग्रुप से लड़ सकें। इस ग्रुप को मुसलमानों ने पहले से कैप्चर कर लिया होगा, लेकिन मुसलमान इनकार कर देंगे और अपने भाई मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे और रोमन्स के खिलाफ जंग करेंगे और वो ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जिसकी मिसाल किसी ने देखी नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई परिंदा इनके किनारे से गुजरेगा तो उसे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। इतने बड़े लेवल पर कत्ले आम होगा। जब गिनती की जाएगी तो 100 आदमियों में से सिर्फ एक जिंदा मिलेगा। इस जंग में मुसलमानों के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा डर कर जंग छोड़कर भाग जाएगा, जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, और एक हिस्सा शहीद होगा जो अल्लाह की नजर में बेहतरीन शहीद होगा, और आखिरी हिस्सा जंग जीत जाएगा और वो कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करेगा। जंग खत्म होने के बाद जब मुसलमान माले गनीमत में मसरूफ होंगे तो शैतान पुकारेगा कि दज्जाल ने तुम्हारे घरों में तुम्हारी जगह ले ली है, और इससे मुसलमानों में हंगामा पैदा होगा और वो बाहर निकलेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। दज्जाल की इस कंफ्यूजन से डील करके मुसलमान सीरिया जाएंगे। वहां मुसलमान एक और जंग की तैयारी में होंगे और नमाज का वक्त हो चुका होगा। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे। वो 2 फरिश्तों के परों पर दमास्कस की एक मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे और वो इमाम मेहदी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। फिर यहाँ से मुसलमानों की लीडरशिप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, दरवाजा खोल दो। जब दरवाजा खोला जाएगा तो सामने दज्जाल खड़ा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। इस दज्जाल की एक आंख कानी होगी, इसके बाल घुंघरियाले होंगे, इसके माथे पर काफिर लिखा होगा जो पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों पढ़ सकेंगे। इसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में दोज़ख। इसकी दोज़ख हकीकत में जन्नत होगी और जन्नत हकीकत में दोज़ख होगी। दज्जाल इस दुनिया में पैदा नहीं होगा, बल्कि वो पहले ही इस दुनिया में मौजूद है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सहाबा को एक वाकया सुनाने के लिए जमा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके पास एक तमीम उदारी नाम का इंसान आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि एक दिन वो अपने जहाज पर सफर कर रहा था, तो रास्ता भूलने की वजह से इसका जहाज एक जजीरे पर जाकर रुक गया और उन्होंने उस जजीरे पर जंजीरों में जकड़ा हुआ एक इंसान देखा। इस इंसान ने इनसे कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल, बेसन के खजूर के दरख्त फल देते हैं या नहीं? तमीम उदारी और इसके साथियों ने जवाब दिया और कहा कि खजूर के दरख्त वाकई फल देते हैं। दूसरा सवाल, क्या तब्रिया की झील में पानी है? तमीम उदारी और इसके साथियों ने कहा, झील में पानी बहुत ज्यादा है। तीसरा सवाल, मुझे उम्मियों के उस नबी के बारे में कुछ बताओ। तमीम उदारी और इसके साथियों ने जवाब दिया, उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर ली है और बहुत से अरबियों ने उनका इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनते ही वो गुस्से से फटकारा और उसने जंजीरों को झटका दिया। इसके बाद इसने इन्हें अपना नाम बताया, दज्जाल, और इसने कहा कि बहुत जल्द मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, लेकिन मक्का और मदीना में मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद मशरिक की तरफ इशारा करके फरमाया, दज्जाल यहाँ से निकलेगा। इसके रिलेटेड एक और हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल खुरासान से निकलेगा और इसके साथ लोग होंगे जिनके चेहरे चिपटी ढालों की तरह होंगे। जी हाँ, खुरासान वही इलाका है जहाँ से इमाम मेहदी की फौजें निकलेंगी, यहीं से दज्जाल भी निकलेगा। दज्जाल के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही सहाबा को वार्न कर दिया था, क्योंकि ये इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल इंसान को मारकर दोबारा जिंदा करेगा और वो अंधे और उपाहिज लोगों को ठीक कर पाएगा और वो जमीन को भी फाड़ पाएगा और मौसम पर उसका पूरा कंट्रोल होगा। जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा, लेकिन दज्जाल मौसम को कैसे कंट्रोल करेगा? 1990 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रेन एनहांसमेंट मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, जिसे आज हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से बारिश करवाई जा सकती है।
इस टेक्नोलॉजी में सिल्वर आयोडाइड को एयरक्राफ्ट से बादलों में रिलीज किया जाता है। इसे अरब कंट्रीज जैसे दुबई, सऊदी अरब और ओमान ने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया है, क्योंकि इन इलाकों में बारिश बहुत कम होती है, जो कि इन अरब कंट्रीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से अरब कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ी हैं और दज्जाल भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके वेदर पर कंट्रोल करेगा। दज्जाल इन पावर्स का यूज करके लोगों को मजबूर करेगा कि उसे खुदा माना जाए। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को देखेंगे, उसे कहेंगे कि मैंने तुझे इनसे दूर रखा है, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मुकामे लुद पर पकड़ेंगे और उसे वहां नेजा मार कर कत्ल कर देंगे। मुकामे लुद पर आज के दौर में इसराइल ने एक एयरपोर्ट बना रखा है और शायद दज्जाल किसी प्लेन में वहां से भागने की कोशिश करेगा और वहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे। दज्जाल की मौत के बाद मुसलमान और यहूदियों के दरमियान एक जंग होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे भी छुपा हो तो वो पत्थर भी बोल उठेगा कि ए मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आकर इसे कत्ल कर दे, सिवाय गरकुत के दरख्त के, क्योंकि ये यहूदियों का दरख्त है और इसराइल में ये बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद इमाम मेहदी वफात पा जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहदी तुम में 7 या 8 साल तक रहेंगे। इसी पर इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो अल्लाह इस यूनिवर्स की रोटेशन को स्लो कर देगा, जिससे वक्त स्लो गुजरेगा और इस तरह इमाम मेहदी सिर्फ 7 सालों में दुनिया फतह कर लेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान के कानून और एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से लोगों में इंसाफ के साथ फैसला करेंगे, क्रॉस को तोड़ देंगे और खंजीरों को मार डालेंगे और जिज़िये को खत्म कर देंगे। फिर एंट्री होगी याजूज माजूज की। तो देखा दोस्तों आपने, अल्लाह ताला अपने बंदों को किस तरह आजमाने वाला है और किस तरह आजमाता है। जन्नत हमें यूं ही नहीं मिलने वाली। जन्नत में जाने के लिए पहले ईमान का होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा अच्छे अमाल का होना बहुत ज़रूरी है कुरान और हदीस के मुताबिक, तभी इंसान कामयाब होगा आखिरत में इंशाअल्लाह। ये दुनिया और दुनिया की हर चीज़ एक दिन ख़त्म होने वाली है। जिस दुनिया के चक्कर में लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, मज़हब के नाम पर इंसान को इंसान का दुश्मन बना रहे हैं, किसके लिए? इस दुनिया के लिए जो एक दिन छोड़कर जाना है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की नेक तौफीक दे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स करके बताएं दोस्तों। मेरे इस चैनल को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।